So, a very good afternoon to all of you. We are going to discuss a very important part of the neck, back of the neck, that is the suboccipital region, or more specifically, suboccipital triangle. A 10-marker question was asked in the recent examination. जो भी recent यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था रिमांडेड का आपके सीनियर्स का सप्ली एग्जाम जो भी हुआ था जनवरी में, ठीक है, उसमें ये 10-मार्कर क्वेश्चन था. Boundaries, contents of the suboccipital triangle. So, as the name implies, the suboccipital region or the suboccipital triangle, area below the occipital bone, area below the occipital bone. So, it is actually the area inferior to the inferior knuckle line. And what are the knuckle lines? These are the ridges, transverse ridges at the occipital bone extending from the midline. So, the inferior knuckle line, the mastoid process and the spine and the transverse process of second cervical vertebrae. क्या हुआ बच्चे, क्या इश्यू है? तो मैं कह रहा हूं मैं, हाँ, क्या इश्यू है? तो फिर क्यों बात कर रहे हो? नहीं पढ़ना है, सो सकते हो. फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने. किसी को उठाया हो तो बताओ सोते हुए आज तक. कहाँ गए वो एक दो चेहरे? तो मुझे याद है जो अक्सर सोते रहते हैं, पर बात नहीं करोगे. So, inferior knuckle lines, spine and transverse process of the C2 and the mastoid process. So, this area is known as suboccipital region. This is an important anatomical region for neurosurgeons. Neurosurgeons generally approach the posterior cranial fossa through this region to dissect out the tumors of the posterior part of the brain. So, as you can see over here, there are some muscles, nerves and arteries. Definitely veins are also there. Veins generally accompany the arteries. So, at the back of the left side, this is the superficial, these are the superficial structures, and here the trapezius is removed and the semispinalis capitis is also dissected out to expose the suboccipital triangle. Here you can see this triangular area which we are going to talk about, surrounded by three muscles. One is rectus and two are obliquus. So, there are two recti, mainly the rectus capitis posterior major, but supplemented by the rectus capitis posterior minor, and the two oblique muscles. One is the obliquus capitis superior and other one is inferior. So, we will talk about the boundaries and the contents. Other than
therapeutic approach for the patient of tumors of the brain. This area is also known for its diagnostic purpose. Diagnostic means in case a clinician is not able to withdraw the CSF, sampling of the cerebrospinal fluid from the lumbar region, which is generally known as lumbar puncture. If he or she is not able to withdraw the CSF from this region for any sort of causes, like there may be tumor at the site, the patient might have already some surgical or anatomical malformations over there. So the cisternal puncture or the puncture of the subarachnoid space is also done from this region, the suboccipital region. The third clinical entity which is related to this suboccipital region is the infections of the hair follicles of this region may spread to the venous sinuses of the brain, which is also true about the facial vein through its deep facial vein and pterygoid plexus and the emissary vein into the cavernous sinus. So infection of the hair follicles or this region is not common in general population, but is very common in case of diabetics, uncontrolled diabetics. The infection of the hair follicles or the subcutaneous tissue of this region. So that is known as carbuncles. Carbuncles, you will read about carbuncles in your डर्मा डोमेन. जब आप डर्मा पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में डर्मेटोलॉजी, स्किन एंड वीडी, तो उसमें क्या होगा कि कार्बंकल्स में आपको पढ़ाएंगे, सर्जरी में भी आएगा कार्बंकल्स. ठीक है, तो ये 2-3 क्लिनिकल इम्पोर्टेंट चीजें हैं. मैं पहले इसलिए बता देता हूं कि आप उस टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट हो. नहीं, जनरली क्लिनिकल आपकी बुक में लास्ट में लिखे होते हैं, टीचर्स भी ज्यादातर लास्ट में ही स्लाइड में ही आता है. ठीक है, तो ये 3-4 क्लिनिकल एंटिटीज हैं. So these are the bony sites of attachment. फोन साइलेंट रखा कर भाई बुढ़ानिया. पढ़ते तो हो नहीं, तुम घूमते रहते हो. कल शाम को वहां कहाँ घूम रहे थे डेकाथलॉन पे? तो डेली खेलने जाते हो? अच्छा, संडे. चलिए, so here are the bony attachments of the muscles of the suboccipital region. The red color areas are showing the origin. रेड कलर में क्या है? ओरिजिन. और ऊपर इंसर्शन. तो एक कॉमन चीज आप समझ सकते हैं कि मसल की डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स इज अपवर्ड. सम आर लेटरल, सम आर रेडियल. ठीक है, so rectus means straight, obliquus means oblique, capitis means head. ठीक है, लॉन्गिसिमस का मुझे भी नहीं पता, जस्ट गूगल इट. ठीक है, लॉन्गिसिमस may be related to the long fibers with respect to the other capitis muscles like splenius capitis. ठीक है, so these are the knuckle lines, superior knuckle line, inferior knuckle line. So most superficial muscles in this region are the trapezius and sternocleidomastoid. ठीक है, उसके डीप में जो है that is semispinalis capitis, obliquus capitis, फिर ये rectus capitis. और तो देखो, जब सबसे सुपरफिशियल है उनका इंसर्शन ऊपर है, फिर तो ये सबसे डेप्थ में रेक्टस वाले. ठीक है, दिस इज एटलस और द C1, दिस इज एक्सिस और द C2. एटलस का क्या है?
स्पाइन इतना प्रोमिनेंट नहीं है बाकी वर्टिब्री की तरह. सो देयर इज ए ट्यूबरकल एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द बोथ द लेमाइना ऑफ द एटलस. ठीक है. तो वर्टिब्री का ये पार्ट क्या होता है? लेमाइना. तो क्या कहते हैं? लेमाइना. इस इमेज, ये इमेज जो है मैंने ली है, उसका जनरल पर्पज ये कि आपको डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स शो करना है. ठीक है. ये नीचे से इस तरह से अपवार्ड्स एंड लेटरली, अपवार्ड्स एंड मीडियली. देखो यहाँ पे ट्रेपेजियस को रिमूव किया, फिर सेमी स्पाइनलिस को भी कट किया, दिख रहा है. फिर जो है ये आपके लेटरल में स्प्लिनस कैपिटस, इनको भी कट किया. उसके बाद ये ट्रायंगल की बाउंड्री आपको दिख रही है. ठीक है. सो दिस ट्रायंगल is bounded by rectus capitis posterior major at superiomedial portion. ठीक है. सुपीरोमीडियल, ये सुपीरोमीडियल हुआ ना, ये मिड लाइन है. सुपीरोमीडियली क्या है? रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर सप्लीमेंटेड बाय रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर. ठीक है. सुपीरोलेटरल कौन सी है? ये कौन सी सुपीरियोलेटरल? ये मसल सुपीरियर. ठीक है. इंफीरियोलेटरल ऑब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर. ठीक है. ये क्वेश्चन आ सकता है. अभी जस्ट तुम्हारे सीनियर्स के यूनिवर्सिटी एग्जाम जो रिमांडेड का या जो सप्ली बेस था, उसमें ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का. So you can notice that out of these 3 or 4 muscles, 2 are getting their origin from spine of the axis or the second cervical vertebra. ठीक है. रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर एंड ऑब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर, इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? स्पाइन ऑफ एक्सिस से. ठीक है. फिर रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, it runs upwards and laterally and get inserted at the lateral part of the inferior knuckle line. ठीक है. and the area below it. inferior knuckle line के lateral part और उसके नीचे वाले एरिया में ये इंसर्ट हो रही है रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर. जो ऑब्लिकस कैपिटिस है, जो दूसरी स्पाइन ऑफ एक्सिस से दूसरी मसल जो ओरिजिनेट हो रही है, दैट रन अपवार्ड्स एंड लेटरली और oblique. The fibers runs obliquely and get inserted at the transverse process of the atlas or the C1. ठीक है. तो वहीं से फिर ओरिजिन हो रहा है ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर का, जहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है इंफीरियर का, वहीं से और ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर का ओरिजिन हो रहा है. ठीक है. और इंसर्शन कहाँ हो रहा है उसका? इंफीरियर नकल लाइन के अबव टू इंफीरियर नकल लाइन. देखो पोस्टीरियर मेजर का तो इंफीरियर नकल लाइन के लेटरल पार्ट में, उससे जस्ट ऊपर इसका, और ये रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर. जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज विंडो बिटवीन एटलस एंड द ऑक्सीपिटल बोन. द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच का स्पेस. ठीक है. जहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिखती, वर्टिकल लाइन है, दिस इज एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन. क्या है? एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन. ठीक है. एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच की मेम्ब्रेन. ठीक है. तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? यस, मूवमेंट, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे. ठीक है. एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच के जॉइंट पे. ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलस और एक्सिस के जॉइंट पे. इस केस में क्या है? स्कल के साथ साथ एटलस भी मूव कर रही है. स्कल के साथ साथ ऑक्सीपिटल बोन और एटलस दोनों ही मूव कर रहे हैं. ठीक है. नो मूवमेंट में. और यस मूवमेंट में, मूवमेंट कहाँ हो रही है? एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच.
और 9 में एटलस और एक्सिस के बीच। ठीक है, क्या धरना देना है क्या कहीं? गुज्जर धरना बहुत देते रहते हैं, पटरियां उखाड़ देते हैं, और है ना, बात तो सही। नो कम टू द पॉइंट। एटलांटा ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जब लंबर पंक्चर अगर सर्जन यहाँ नहीं कर पाते लंबर रीजन से, ठीक है, तो क्या करते हैं, स्पाइन ऑफ एक्सिस को फील करते हैं और उसके ऊपर निडल पेस करते हैं, निडल को मिड लाइन में, स्पाइन ऑफ एक्सिस से ऊपर। ठीक है, एंड दैट गोज अप टू दी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ज्यादा डीप में नहीं जाना। 5 सेंटीमीटर निडल का अगर आप जा रहे हैं तो आप सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंच गए, वहां से सीएसएफ को विड्रॉ कर लो। उससे ज्यादा अंदर गए तो आप सीधा मेडुला को पंक्चर कर देंगे। जस्ट 1 इंच का डिस्टेंस है उसके बाद। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तो आप डायरेक्टली मेडुला को इंजर कर सकते हैं। तो ये है एटलांटा ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, यहीं से निडल पियर्स करते हैं। नाउ कम टू द कंटेंट्स। बाउंड्री हो गई, कंटेंट्स पे आ जाओ। कंटेंट्स में क्या है? मेन कंटेंट जो है दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी। क्या है? वर्टिब्रल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? सब क्लेवियन आर्टरी। किसकी ब्रांच है? सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी का वो याद करते हैं ना, VIT, वर्टिब्रल इंटरनल थोरेसिक एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है ये सब क्लेवियन आर्टरी के। जो वर्टिब्रल आर्टरी का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज फ्रॉम इट्स ओरिजिन अप टू द ट्रांसवर्स फोरामेन ऑफ द C7, वो उसका हो गया फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी courses into the transverse foramina of the all 7 cervical vertebrae। ठीक है, वो उसका थर्ड पार्ट है जो ट्रांसवर्स फोरामिना में है। फोर्थ पार्ट फ्रॉम ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ C1 एंड अप टू पोस्टीरियर एटलांटा ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या उसका थर्ड पार्ट। फोर्थ है एटलांटा ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के बाद। तो वर्टिब्रल आर्टरी के चारों पार्ट आपको अलग अलग पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे MCQ डायरेक्टली पूछते हैं। सेकंड पार्ट कहां से कहां तक है, फोर्थ पार्ट कहां से कहां तक। तो फर्स्ट पार्ट तो कौन सा हो गया? ओरिजिन से लेके C7 के ट्रांसवर्स फोरामेन तक। सेकंड हो गया C7 से C1 तक सारे ट्रांसवर्स फोरामिना। थर्ड पार्ट हो गया C1 के ट्रांसवर्स फोरामेन से लेके पोस्टीरियर एटलांटा ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन को पियर्स करिए तब तक। फोर्थ हो गया उसके बाद अंदर एट द बेस ऑफ द ब्रेन where the two vertebral arteries fuse। ठीक है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं पॉन्स पे। So this vertebral artery is having a tortuous course over here to permit the movements। जैसे facial artery का भी यही इंपॉर्टेंस है। टॉर्चुओसिटी किस वजह से? मूवमेंट्स ऑफ, टू परमिट द मूवमेंट्स ऑफ जो विदाउट डैमेजिंग और स्ट्रेचिंग द आर्टरी। सेम वर्टिब्रल आर्टरी का भी। ठीक है, टॉर्चुओसिटी इसको हेल्प करती है टू डैम्प डाउन द आर्टीरियल पल्सेशन। प्रेशर एकदम से अंदर ब्रेन में नहीं जाए। तो दो यूज हैं यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी के कोर्स के टॉर्चुअस होने के दो यूज हैं। ठीक है, एक तो मूवमेंट्स इजी होंगे विदाउट स्ट्रेचिंग द आर्टरी इन लेंथ। दूसरा टू डैम्प डाउन द आर्टीरियल पल्सेशन। तो ये कौन सा पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है? हाँ, वो जिसको चाय पी के गर्मी चढ़ रही थी, चश्मे वाले, तुम बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ, बताओ ये कौन सा पार्ट है जो दिख रहा है? ऐसी कहां से चाय पी तुमने कि तुम्हें 2 घंटे बाद तक गर्मी लग रही थी? सही जगह चाय पिया करो, आजकल चाय वाले बहुत मिक्सिंग करते हैं।
बताओ बताओ ये कौन सा पार्ट है? ऑक्सीपिटल एरिया तो ठीक है, बट वर्टिब्रल आर्टरी का कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड नहीं, थर्ड है। बैठो। देखो केबीसी में वो एक ऑप्शन होता है ना कि क्या कि पीपल्स, जो उनका सजेशन लोगों का जो होता है, एक लाइफ लाइन होती है। तो ये जो आगे वाली 3-4 लाइनें है ना, ये तुम्हारे लिए लाइफ लाइन। ये एक बार जो बोल देना वो ही बोल दिया करो एटलीस्ट, ठीक है? 90% केसेज में वो सही होता है। आगे की 3-4 लाइन, बट ये कि मैं तो शिफ्ट कर देता हूँ ना पीछे वाली लाइन को तो आगे। देयर आर 2 nerves also, ठीक है? C1 and C2, dorsal ramus of C1 and C2। C2 का जो डोर्सल रेमस है उसका एक पर्टिकुलर, तीनों का एक्चुअली C1, C2, C3 तीनों का एक अलग अलग, उनको अलग नेमिंग भी है उनकी। जैसे कि C1 के लिए सब ऑक्सीपिटल नर्व है, ठीक है? C2 के लिए ग्रेटर ऑक्सीपिटल है, C3 का खुद का उसका नाम थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व है, ठीक है? दो नर्व्स इस ट्राइंगल से रिलेटेड है, C1 एंड C2, डोर्सल रेमस। Floor and roof. Floor is found by the transverse process of the atlas, ठीक है? Along with posterior atlanto-occipital membrane, ठीक है? तो ये क्या हो गया? Floor। और the posterior arch of the atlas, posterior arch of atlas and posterior atlanto-occipital membrane is floor। Roof is found by the semi-spinalis, जिसको हमने डिसेक्ट करके फिर ट्राइंगल को एक्सपोज किया था, दैट इज रूफ, ठीक है? सुपरफिशियल फेशिया एंड द मसल्स। रूफ में क्या है? सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस मीडियली एंड स्प्लेनियस कैपिटिस लेटरली, ठीक है? ये रूफ हो गई। सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस लेटरली एंड स्प्लेनियस कैपिटिस, सॉरी, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस मीडियली एंड स्प्लेनियस कैपिटिस लेटरली। ये टेबल है मसल्स की, और मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई भी रीजन हो, एनाटॉमिकल रीजन हो बॉडी का, आपको टेबल बना के अगर याद करोगे तो इजी याद हो जाएगा, ठीक है? और टेबल को एज इट इज कॉपी नहीं करना अपने नोट्स में, एक एक दो दो वर्ड में, ठीक है? तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई जैसे कि एक साथ बना लोगे ना टेबल, जैसे अपर लिम का, आर्म का, फ्रंट ऑफ आर्म, बैक ऑफ आर्म का एक एक बना लिया, तो तुम्हें ये बहुत चीजों को कनेक्ट करना हो इजी हो जाता है। जैसे इस टेबल से तुम कर रहे हो कि देखोगे कि आप दो मसल्स हैं स्पाइन ऑफ एक्सिस से ओरिजिन हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद एक जो स्पाइन ऑफ एक्सिस से ओरिजिन हो रही है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस पे इंसर्ट हो रही है, और वहीं से दूसरी एक और ओरिजिन हो रही है, ठीक है? ओब्लिकस कैपिटी सुपीरियर। तो इस तरह से तुम कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, इजी होगा याद करना, ठीक है? नर्व्स का भी एक वो है फ्लो चार्ट, नर्व्स के तो विश्राम सिंह ने अच्छे से फ्लो चार्ट दे ही रखे हैं, ठीक है? तो ये देख लेना, ये हमने डिस्कस कर लिया, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन में। देखो ये जो सब ऑक्सीपिटल रीजन की मसल्स है ना, इनके एक्शन तो बेसिकली ये है एक्सटेंशन, रोटेशन, बट जनरली दे आर पोस्चुरल मसल्स। क्या है? पोस्चुरल मसल्स। इन लोअर एनिमल्स और लोअर मैमल्स दे होल्ड द हैवी हेड अगेंस्ट द ग्रेविटी। कैटल्स और उनमें है ना, उनमें हेड ऐसे अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसको होल्ड करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, सो दीज मसल्स आर वेल डेवलप्ड इन द लोअर एनिमल्स, उनमें ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होती है। हमारे लिए ये कि रोटेशन और एक्सटेंशन में बहुत सारी दूसरी मसल्स भी डेवलप हो गई हैं, जैसे स्टेनोक्लिडोमास्टोइड फॉर रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है? तो बेसिकली मेनली दे आर पोस्चुरल मसल्स।
बात हम पहले कर चुके हैं। वर्टिब्रल आर्टरी देखो, ये फोरामेन C1 के फोरामेन ट्रांसवर्स फोरामेन से बाहर आ रही है, फिर अंदर यहाँ पे दिस इज द वर्टिब्रल कैनाल। ये क्या है? वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। सो हाउ इट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व एंड द एटलस वर्टिब्रा, ठीक है। एटलस वर्टिब्रा के जो उसका जो पोस्टीरियर आर्च है उस पे ऐसे हॉरिजॉन्टली ये रन करती है टुवर्ड्स मीडियल साइड एंड पियर्स द एटलेंटा ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। So that was all about the suboccipital region or the suboccipital triangle, ठीक है। Any query related to this topic? Thyrocervical trunk, thyrocervical trunk. Keep silence, keep silence. Speak loudly. Posterior arch पीछे, anteriorly anterior arch,